10 to 15 minutes. Kindly be patient and stay in the meeting. Thank you. Sir would be 10 to 15 minutes late due to some emergency. In the meanwhile, we are showing you a TED Talk. It is of Suraj sir. You can enjoy that. Thank you. How's the Josh? Once more, how's the Josh? Great. I'm very sure after two energetic sessions, your Josh had to be high. And as I travel down my memory lane, I would like to, my motive will be to increase this amount of Josh further. Organizers of this event have asked me to share my journey. And I find it extremely pertinent to share my journey, which is full of struggles and achievements, successes and failures. And my motive, as I said, would be to increase your Josh, would be to make you dream big and achieve it.
Friends, from this forum today, I have been introduced as Suraj Singh Parihar, IPS. My story, as I would share, you would find it extremely filmy. Filmy in the sense, a young boy with high expectation, high ambition, aging parents, deteriorating financial health of the family, big family to support, rural background. As I was told in the generous introduction, I belong to Hindi medium, so I find it extremely difficult, but I'm trying here to speak in English. So, with this background, me and my friend, we started a coaching at the tender age of 17 or so. And we tried our best, couldn't succeed. Afterwards, I tried my hands at multi-level marketing with Amway, couldn't do significantly well there also. And to the world, these were failures. And to me, these were experiences, enriching ones. My dear friends, success is not a destination. It's a journey, ongoing process. And moving on to the next milestone of my journey, I appeared for call center interview because with my level of educational qualification, that was the easiest available option back then. I was only BA final year student. And I was so much burdened with expectations, as I told you. I was topper in the 12th, topper of my college. I was already a president awardee for creative writing at the age of 15. And I was really very burdened. So I appeared for the interview in EXL.com in Noida. I somehow cracked it, joined in Noida, left Kanpur at the tender age of 20 again, not for studies, but for work, full time, that too. So there we were trained, since it was a UK-based process, we were trained for voice and accent for about 2 months. After that, they took my final assessment before the proper induction into the company. And guess what? I flunked. And they were kicking me out of the company. At this, I begged before the senior manager, literally with folded hands, believe it or not, to retain me. In turn, he was kind enough to retain me in the company, and I also did not let him down. I made sure after 24 months of work and job in that company, when I was leaving the company, my name was well there on the wall of fame as the best seller of car insurance to all UK clients there. But believe me, this idea of being bestseller in car insurance in international BPO was not my idea of success. मैं टेबल के इस पार से उस पार तक का सफर तय करना चाहता था. I wanted to become an IPS officer. So with those savings, little savings, and with my dream in my heart, I landed up in Delhi for coaching and preparation. And this metro had a lot of competition and pace to offer a small town guy like me. Initially, I could not catch up. But very soon I realized that the real competition, the actual one, was with me, myself, and not with the outer world. I could not complete the coaching because my funds were waning away, they were eroding. So I had to move on to the next milestone. I gave another exam, Bank PO this time, SBI PO I joined. And since I was a serious student till class 12th, I did not find much trouble to crack the exam. I gave 3 years of my life to SBI, 1 year each at Agra, Delhi, and Roorkee, and they were promoting me as branch manager in SBI in Chamoli. My family was very happy, all were content, and they wanted me to settle down in life. But believe me, this idea of branch manager in some bank was also not my idea of success. Not that I am belittling it, but I had different plans. So, with SBI PO, since I was getting promoted, I knew my responsibilities and my workload will increase so much so that my dream to become an IPS will die an unnatural death. I again switched my gears. I had to give exam for SSC graduate level. That was Group B in the capacity of inspector. I cleared it, joined Delhi. And really, I'm telling you, this was a tough call. Many of my friends, my family members, they dismissed this idea as a decision taken in haste. But for me, my vision was clear. बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, and this was it.
And situation really improved. I started getting 2 weekly off, Saturday and Sunday. This was a much better situation as compared to SBI, जहां मुझे गरम चाय की प्याली भी मुझे याद नहीं, शायद ही पी पाता हूंगा मैं. So this was exactly when and where my real preparation started. And my dear friends, success is when your preparation meets the opportunity. And out of these two, only preparation is in your hands, because opportunity will not tell you before coming, it will not inform, and it will not knock at your door twice either. Remember this. So I was prepared both mentally and physically to grab the opportunity as and when it comes. And with this preparation, I gave my first attempt in the year 2011-12. I cracked prelims among lakhs of students, narrowed down to few thousands, cracked mains, narrowed down to few lesser thousands again, could not make it to the final list. But this really boosted my morale and confidence, because by then I knew so many people who would show me Almirah full of books that they claimed to have studied, and they could not clear even PT in years together. So that really boosted my morale. I knew I could do it. Second attempt, much better attempt with lot of more preparation, matured preparation, cleared PT, but guess what? I flunked at mains. And this was a shock for me. I shattered. But since my dream was alive and kicking in me, I had to regather myself. I again tried my best and gave the third attempt. This time I cracked UPSC with 334 rank, and I got prestigious Indian Revenue Service. And this again could have been a dream service only, but I was fixed onto my dream to become an IPS officer. This is the photo you can see, the coaching when we started. This is throwback. I was working in call center. This is Indian Revenue Service one. See, life is led in two ways, as if everything is miracle or nothing is miracle. These were the most turbulent times of Hindi medium. It was almost getting wiped out. Out of total 1,296 vacancies, only 20-30 guys could make it to the final list, in spite of being the single largest medium of students who give the exam. So, as they say, himmate marda madade khuda, God helps those who help themselves. All Good afternoon, everyone. Sir is with us now, and I would now request Elisha to kindly start with the session. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you, Sanil. Thank you, all the organizers, for having me here. Please go ahead with the session. Thank you, sir. A very warm and pleasant good afternoon to everyone connected with us today. I, Elisha, on the behalf of Nishtha, the Civil Services Society of Hansraj College, welcome you all on the 6th day of our mega event, Avikshit 21. This spectacular event that has been a compendium of several incredible speaker sessions with the most illustrious personalities from the Indian bureaucracy is back with yet another exemplary speaker. I extend my hearty welcome to our honorable and renowned chief guest speaker for the day, IPS Surat Singh Parihar. I would also like to thank our respected principal, Dr. Rama ma'am, and our esteemed convener, Dr. Mahindra Prajapati sir, for their constant motivation. I welcome the cordial audience for gracing and adding luster to this session. Nishtha, an innovative and one-of-a-kind society of Hansraj College, is acclaimed to provide a vibrant platform for fervent civil services aspirants to converge and converse. Nishtha holds the honor of hosting many incredibly prominent personalities in and around the field of civil services. Treasuring the motto of Nishtha Dhriti Satyam, the society is a paragon of the values of dedication, steadfastness, and truth, and has begged profuse honors and recognitions at different stages from renowned organizations and personalities. It always seems impossible until it's done.
Hold the vision, trust the process. On this note, I would like to introduce our chief guest speaker of the day, IPS Suraj Singh Parihar, who successfully cracked the exam not just once, but 2 times in 2013 and 2014 with All India Rank 3 and All India Rank 2 in the Hindi medium respectively. A police officer par excellence who is presently serving as the ADC to the Honorable Governor of Chhattisgarh, Mr. Parihar was honored by the President of India with the prestigious National Balshri Award for Creative Writing. A true inspiration for all the young minds, he is also acting as a shining beacon of hope for the diligent yet destitute aspirants through his selfless initiative of Police Ki Pathshala, a free and up-to-date book bank for the competitive examinations. In his own words, रंग कोई हो वर्दी का वो फीका नहीं है होता, क्योंकि हर वर्दी के पीछे लहू का लाल रंग है होता. Sir would be addressing us on the topic, how can self-belief and hard work shape your life? I wholeheartedly welcome you, sir, on behalf of Nishtha and Hansraj family, and request you to kindly take over the forum and initiate your address. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Jai Hind. I have been given the topic, how can self-belief and hard work shape your life? So I will directly come on to the topic, because obviously I work for police, and it's we value time, and ours is an unpredictable thing. So I may get a very important point or urgent task at any given point in time. So here in this topic, the most important word that I could get a hold of was self-belief. So I will start my talk by talking a few things on self-belief. What is self-belief? Self-belief, I think, is the belief in self, as it suggests itself. I can do it. If I am tasked with something, yes, I can do it, and I will do it. It is the self-belief. Why self-belief is important? Why self-belief only? Because if you don't have the self-belief, it is very simple. You'll not be able to do it. As simple as that. When should I have the self-belief? I think it is the time, this very right second, one should have self-belief in oneself. A child, when he or she is born, is full of self-belief, full of confidence. But over a period of time, with the passage of time, with certain experiences, it may increase, it may decrease. The need of the hour is to sustain it and to nurture it, to capitalize on that. Where should I have self-belief? I think we should have self-belief in our hearts, in our minds, and we should bear it on our face. We should exude in confidence. That is where our self-belief should be having the ornamental value for us. Who has the self-belief? It's a big question. Who has the self-belief? I think a person who has done SWOT analysis, the strength, weakness, opportunity, and threat options available, who has done a proper homework, who doesn't shirk hard work, then the topic automatically connects. Who doesn't shirk hard work has the self-belief. I think both of these terms are mutually respecting, mutually complementary. Once you have self-belief, you will automatically be motivated, be propelled to do hard work. And then once you start doing hard work, it will be augmenting your self-belief. So both are mutually nurturing, mutually respecting. One who dreams big, has self-belief, and does hard work. So when I ask you to dream and dream big, I am not promoting daydreaming. मैं बहुत fortunate रहा हूँ. I have been able to meet Dr. APJ Abdul Kalam. He has been one of my icons, or I idolize him. So उन्हीं के शब्द हैं ये, कि सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. So अब सोने नहीं देने का एक कॉनोटेशन यही है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और आप अपने सपने के नजदीक पहुंचते हैं. अब जब हमने सपने की बात कही है, तो सपना
इस तरह से नहीं होता कि आई वांट टू बी अ मिलियनेयर। आपका सपना स्कीमेटिक होगा, आप छोटी छोटी बातों पे फोकस करके फिर बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। और बोलते भी हैं बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर द outline of this program. I have spoken a bit on this mutually respecting cycle. Uh, Now I would be sharing the philosophy of my life. I would be sharing the journey of my life in a nutshell. I hope you have certain takeaways from that. I would be sharing a few examples from my own life and from the life of others, and then we will proceed to the question and answer session if there are any. So, philosophy of my life. I think a philosophy of my life has led me to hard work again, because I really believe in uddyamen hi siddhanti karyani na manorathe nahi suptasya singhasya pravashanti mukhe mriga. उद्यम से सिद्ध होता है, कोई भी कार्य जो है मनोरथ से सिद्ध नहीं होता। एक मनोकामना रख के बैठ जाने से उसकी पूर्ति नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे अगर शेर जंगल में सोता रहे तो भले ही कितना बड़ा राजा है वो जंगल का, हिरन उसके मुख में खुद आके प्रवेश नहीं करेगा। या जब हम कहते हैं हमारा इट्स वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल मान्यताएं हैं उनमें सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखा। जब तक आप एक लर्नर हैं, एक विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, और खासकर यूपीएससी के सेंस में, चूंकि ये सोसाइटी यूपीएससी के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है हंसराज कॉलेज की, तो सुख का परित्याग कर दें पूर्णतः जब तक आप विद्यार्थी हैं, नहीं तो विद्या बहुत दूर दूर भागेगी आपसे। फिर हम बात करते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो वो हमारे जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए फिलहाल अभी, जब तक कि हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। और यकीन मानिए ये जीवन भर रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य आपके चेंज होते रहेंगे और वही व्यक्ति हमेशा आगे जाएगा, बढ़िया होगा, जो कल से आज बेहतर और आज से कल बेहतर होने का ख्वाब रखता है। और जब आप 21 का लक्ष्य बनाएंगे तब आपको 19 या 20 मिलेगा। जीवन कुछ इस तरह का है। तो इन सभी चीजों को जोड़ के, इन डॉट्स को कनेक्ट करके ही देखिए, तभी संपूर्णता में आपको समस्त स्थिति का अच्छा आकलन आप कर पाएंगे। ये हमारे यहाँ सीधे सीधे तौर पे बोलते हैं दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो आलसी है उसका नाश हो जाता है। आपके टॉपिक जो है वो हार्ड वर्क, उसमें एक और कीवर्ड है जो सेकंड कीवर्ड दीर्घ सूत्री विनश्यति। या हमारे यहाँ बोलते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास की ये महिमा है, ये महात्म्य है कि आप अगर अभ्यास करते हैं तो आप सुजान बनते हैं, अच्छी बुद्धिमत्ता वाले बुद्धिजीवी बनते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं अभ्यास और मेहनत के दम पे। ये भी हमारे यहाँ का ही ये चलन है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ये सभी बातें घुमा फिरा के आपके टॉपिक को ही चरितार्थ करती हैं। उसके बहुत गहन निहितार्थ हैं, इनको समझने की कोशिश करिएगा और जहां तक संभव हो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। मैं नहीं कहता 100%, नथिंग इज परफेक्ट, बट एज फार एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बात पहुंचा सकूं, जो दिल में मैं सोचता हूं या जो जीवन में मैं उतारने की कोशिश करता हूं। आप में से 5 से 10% लोग भी उसको अगर समझे और वहां तक पहुंचे और करने की कोशिश की, मैं समझूंगा दिस टॉक हैज बीन सक्सेसफुल फॉर मी। तो आपको जो है मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी ये बताऊंगा कि जर्नी मेरी शुरू हुई 2001 में। आई गॉट द प्रेसिडेंट्स बालश्री अवार्ड। माय प्रिंसिपल केम अप टू मी because I was good in speeches and in writing, and I was a good student. I used to top the college. So he told me that there is one competition. It is organized by National Bal Bhavan. First, it will be held in district level, then zonal level. And eventually, you'll have to compete at the national level. So उनका विश्वास मुझ में था। देखिए, सेल्फ बिलीफ, उनका बिलीफ मुझ में था और मुझ में सेल्फ बिलीफ था। मैंने उनको यस बोला और मैंने लिखना शुरू किया कुछ रैंडम टॉपिक पे। करते करते इवेंचुअली फाइनली गॉड्स ग्रेस मुझे नेशनल बालश्री ऑनर मिला के आर नारायणन सर के कार्यकाल में। तो वहां से शुरू हुई जर्नी। और उसके बाद जब अपेक्षाओं का एक वो स्तर बढ़ा कि अब तो ये हुआ है कानपुर का प्रथम बालश्री अवार्डी नेशनल अवार्ड, तो उसके बाद बड़े बड़े लक्ष्य बनाए जीवन में। और उसके बाद लेकिन चूंकि राहें इतनी आसान नहीं होती हैं, सामने परिस्थितियां दे थ्रो अप देयर ओन चैलेंजेस, और उनको कोप करने के लिए मुझे बहुत अर्ली आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई एंड टू सपोर्ट माई फैमिली एज वेल। सो कुछ कोचिंग वगैरह हमने शुरू किया, वहां पे
वांछित सफलता मिली नहीं मिली, 12th के इमीडिएटली बाद से आई हैव नेवर बीन an institutional student. I have been reading for the sake of earning degree. I have been studying. I have never gone to college to attend classes after 12th. So this is how life throws challenges in multiple forms. So वहां से निकल करके मैंने फर्स्ट जो जॉब की वो बैंक पीओ सॉरी बीपीओ था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर. आई वाज सेलिंग कार इंश्योरेंस टू यूके क्लाइंट्स एंड आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम out and out throughout. So it was the self belief. I switched over to BPO. Then I went on. I worked from 2005 to 2007. 7-8 में मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिप्टी मैनेजर ज्वाइन किया. 9 से 12 तक मैं बैंक पीओ से फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड देन ब्रांच मैनेजर एसबीआई में होने वाला था. उसके बाद मैंने उस समय फिर कस्टम एंड एक्साइज ज्वाइन किया. कस्टम एक्साइज में 3 साल एज एन इंस्पेक्टर रहा सीजीओ कॉम्प्लेक्स सर्विस टैक्स वाले ऑफिस में, लोधी रोड दिल्ली में. फिर उसके बाद मैंने आईआरएस, उस समय जबकि हिंदी माध्यम के रिजल्ट हार्डली 1.5% आउट ऑफ टोटल 1000 10 15 20 लोग सेलेक्ट हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया. उसमें अच्छी रैंक से मैं सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क की बदौलत यूपीएससी क्रैक करूंगा, ये मेरा सेल्फ बिलीफ था. यूपीएससी में अच्छी रैंक लाना है, ये मेरा हार्ड वर्क को रहेगा. सो उसके बाद अब आईपीएस भी बन गए. इसमें आई एम वेरी मच श्योर कि आपको हार्ड वर्क दिख रहा होगा. यू मस्ट बी एबल टू फिगर इट आउट कि हार्ड वर्क तो रहा ही रहा होगा इतने चैलेंजेस के बीच में से. आपको सेल्फ बिलीफ कहाँ कहाँ दिखा? सेल्फ बिलीफ दिखता है कि जब एक सामान्य विद्यालय से पढ़ के केवल प्रधानाचार्य के कहने पे लेखन शुरू करना, बिलीफ रख के और नेशनल अवार्ड तक जाना. एक सेल्फ बिलीफ आप देख सकते हैं कि गांव से निकल के शहर के कॉलेज को टॉप करना, फिर 19 साल की उम्र में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कानपुर को पूरी तरह से छोड़ के नोएडा में जाना, वहां बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जॉब करना, और इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली आप यूके क्लाइंट से उसी में बात करेंगे, और वहां पे बेस्ट सेलर बनना, लगातार 3-4 बार हॉल ऑफ फेम में नाम लिखाना. वहां भी आपको सेल्फ बिलीफ दिखेगा. हिंदी मीडियम के सबसे बुरे दौर में हिंदी माध्यम से यूपीएससी में फाइनल रैंक्स लाना आईआरएस एंड आईपीएस का, यहाँ भी आप सेल्फ बिलीफ का एक वो वानगी देख सकते हैं मिसाल के तौर पे. और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी जहां पे हम सेल्फ बिलीफ की बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे उद्देश्य अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ाई एक्सैजुरेटेड वे में अपनी सेल्फ प्रेज करने में नहीं आया हूँ. मैं बस एक आपसे स्टूडेंट्स जो हैं आज के, उनसे जुड़ना चाह रहा हूँ. इस तरह से भी जुड़ना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कई बार हमें बहुत दुखद समाचार मिलते हैं कि किसी ने तैयारी शुरू की, बीच रास्ते में उबड़ खाबड़ कुछ आए पत्थर, कुछ रास्ते अवरोधक, मार्ग में बाधाएं, और उसके बाद उन्होंने अपना न केवल पढ़ाई को छोड़ा, इस जीवन इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए. ऐसे बहुत सारे न्यूज आइटम्स मैं अक्सर पढ़ता हूँ. मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे लगता है युवा देश का भविष्य है. ये बड़ी बातें तो सच हैं ही. एक युवा जब मरता है उसके साथ उसके अपने सपनों के साथ वो अपने पूरे परिवार के सपने लेकर के जाता है. वो बहुत प्रत्यक्ष तौर पे वो जो एकदम डायरेक्ट हिट करती हुई चीज है, उससे मुझे बहुत दुख होता है. तो इस तरह के किसी चीजों से प्रभावित ना हो. आपके इरादों से बड़ा कुछ नहीं होता, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत पहले लिख के चले गए, और हमारे बहुत सारे, आपने दशरथ मांझी सुना होगा, उस व्यक्ति ने हौसले के दम पे अकेले की मेहनत से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, वो भी बूढ़ा व्यक्ति. तो आपके इरादे, आपके हौसले से बड़ा कुछ है नहीं है, और आप उसमें भरोसा रखें, सेल्फ बिलीफ रखें. मैं आपको बताऊं, 2 बड़े चैलेंजेस जो आ गए थे लाइफ में. एक, पैसे जुटा करके जब मैं नौकरी करने नौकरी के बाद मैंने पैसे जुटाए बीपीओ में 2005-7 में. फिर मैंने कहा कि हिंदी साहित्य में लूंगा विषय के तौर पे, तो आई शुड बी हैविंग सम कोचिंग गाइडेंस एंड ऑल, बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड हिंदी साहित्य टू दैट लेवल. तो आई ज्वाइंड कोचिंग, और मेरा स्वॉट एनालिसिस उतना अच्छा नहीं था, जो मैंने शुरू में ही आपको बोला, स्वॉट एनालिसिस अच्छा करें अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी परिस्थितियों का. बिकॉज देयर इज नो टेलर मेड फॉर्मूला, देयर इज नो विन विन अप्रोच फॉर ऑल, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. सो वो नहीं ठीक से कर पाया, तो मेरे पैसे चुक गए और मुझे वापस फिर से ज्वाइन करना पड़ा सर्विसेज में. वो 6 महीने ही है केवल जब मुझे बैठना था. उसके बाद आज तक मैं कभी नहीं बैठा 16-17 साल.
दूसरा चैलेंज, एक तो पैसे की कमी का चैलेंज, दूसरा चैलेंज बताता हूँ जब पैसे का आधिक्य हो जाता है। लोग छोटी छोटी जॉब्स, मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके लक्ष्य से पहले के एक माइलस्टोन पे जब आपको अच्छी विलासितापूर्ण चीजें मिलने लगती हैं, लाइफ की सभी सुविधाएं मिलने लगती हैं, तो आप डगमगा जाते हो कि आपका इवेंचुअली अल्टीमेट गोल क्या था, और आप उन्हीं छोटी बातों में रह जाते हैं कई बार। तो मैं जब ब्रांच मैनेजर बन रहा था एसबीआई, नॉट दैट आई एम बिलिटलिंग इट, बट था, वो भी एक चीज था कि आपको प्रमोट करके ब्रांच मैनेजर बना रहे हैं, यू आर इन ग्रुप ए, बट आई कुड हार्डली गेट एनी टाइम टू स्टडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। 3 साल में समझ में आ गया था कि एसबीआई पीओ के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां संडे को भी काम रहता था। तो हमने ज्वाइन किया कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप बी में, ग्रुप ए से। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन निर्णय लेने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो आप प्रशासक बन के, एडमिनिस्ट्रेटर बन के आप बड़े बड़े निर्णय कैसे लेंगे, बाकी लोगों के लिए कैसे लेंगे। तो ये किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं है, ये बस एक आपको हौसला देने की कोशिश है कि आपकी कोशिश, आपके हौसले के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां जो हैं वो कुछ भी नहीं है। और अपने यहाँ एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जैसा मैंने पहले भी बोला, बड़े बड़े लक्ष्यों की कुर्बानी, बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी लक्ष्यों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और आपके सामने बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से हैं। दशरथ मांझी, जस्ट मैंने अभी बताया ही आपको, हमारे अब्दुल कलाम सर क्या क्या बोलते थे, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि एक जैसे अभी, चूंकि आज के युवा ग्लैमर से बड़े प्रभावित रहते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड और ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ वुड्स। तो अक्षय कुमार देखिए आप, आज के जमाने के बहुत फिट सुपरस्टार हैं, हमारी एनपी एकेडमी में भी आए थे, तो मैं भी थोड़ा सा उनसे प्रभावित ही रहता हूँ, उनके फिटनेस से खास तौर पे। अक्षय कुमार के अभी हालिया एक शो में मैंने सुना कि उनको किसी ने बोला कि आप तो शेफ थे, बहुत अच्छे शेफ भी बन सकते थे। उन्होंने बोला मैं रेहड़ी पे काम करता था, आई वॉज नॉट वर्किंग इन ए 5 स्टार होटल एज अ शेफ। और वो बंदा सबसे पहले सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के न केवल दामाद है आज के जमाने में बॉलीवुड। इट्स ए ड्रीम कम ट्रू, इट्स ए बिग ड्रीम रियलाइज्ड, बिग पोटेंशियल रियलाइज्ड, अनलिश्ड। तो ये चीजें हैं। अब आपको लगता है कि, अगर आपको ये लगता है कि हार्ड वर्क का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है, सेल्फ बिलीफ का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है, तो नहीं है। ये जीवन पर्यंत जो है पूरा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो आपको अपने चरित्र में ही उतारना पड़ेगा कि किसी भी चुनौती से नहीं डरना है। कारण आपको डायरेक्टली अपनी लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ। मैंने क्या जीवन में कभी घुड़सवारी की? नहीं की। कभी जीवन में तैराकी की? नहीं की। डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स चलाए? नहीं चलाए। पहली बार जब मैं घोड़े पे चढ़ा, मुझे लग रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा, कंधा डिसलोकेट होगा या सर फूटेगा, क्या होगा। पर फाइनली हमने वो घुड़सवारी का भी टेस्ट पास किया, हमने वो ओलंपिक साइज पूल में तैराकी का टेस्ट भी पास किया। एंड आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ अराउंड 30। नॉट दैट कि एक छोटा बच्चा है जिसको आप धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हो, तो विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड ही इज ओपन टू लर्न सो मेनी थिंग्स, तो ही लर्न। बट हौसला। और मेरे जैसे और भी मेरे बैचमेट्स थे जो काफी उम्र के थे, मेरे से भी बड़े थे, उन्होंने भी कंप्लीट किया। CTJW होता है हमारे यहाँ, कंपलसरी कोर्स है फॉर ऑल द, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल IPS ऑफिसर्स। वी डू इट विद द कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हु आर वेरी यंग। I missed all round best just by 2 marks in that course at the age of 32. दंतेवाड़ा की एक पोस्टिंग थी, काफी चैलेंजिंग थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, क्योंकि हमें पता है चुनौती में अवसर है, आपदा में अवसर है। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा अवसर रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली जो बात थी, जो नोएडा 19 साल की उम्र में पहुंचा था NCR में पहली फुल फ्लेजेड जॉब करने, वो यही है। इसको आपको आदत में लाना होगा। फिर अभी एक टास्क मिला था, नए जिले की स्थापना करनी थी, 28th डिस्ट्रिक्ट जो सरकार ने घोषित किया, और OSD के रूप में मुझे पदस्थापित किया OSD पुलिस। नए ऑफिसेस का चयन है, नए स्टाफ है, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं। तो वहाँ घर और ऑफिस के अलावा डिफरेंट डिफरेंट सारी बिल्डिंग, सारे ऑफिसेस, सारे सेक्शंस खोलना। कोरोना का टाइम ठीक उसी समय। फिर ओनली बाई इलेक्शन ऑफ द स्टेट एट द सेम टाइम। तो ये सब मैनेज करना, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपका चयन हो गया और हो गया, इतिश्री हो गई, नहीं। चयन के बाद असली हार्डवर्क शुरू होगा। तो आपको हार्डवर्क अपने, या सेल्फ बिलीफ अपने कैरेक्टर में ही लाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा शिद्दत से। उसके बाद अपना काम तो करते ही हैं, कुछ कुछ जो है अपने मैंडेट नहीं वो भी करते हैं अपन। जैसे बुक बैंक, अभी 500 करीब बच्चे हैं उस बुक बैंक में।
तो सेल्फ बिलीफ था। या कोरोना काल में देश भर में मुझे बिलीफ था कि मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। अराउंड 200 क्रिटिकल पेशेंट्स की हमने देश भर में मदद की अपना रेगुलर काम करते हुए एज एसपी ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। वो सेल्फ बिलीफ है। एंड हार्ड वर्क ऑब्वियसली इट विल फॉलो। वो सेल्फ बिलीफ है कि मैं लोग मेरे काम को देखते हैं शुरू से, मैं लोगों से अच्छे से कनेक्टेड हूँ, सेल्फलेसली उनसे बात करता हूँ, उनकी हेल्प करता ही रहता हूँ। तो अगर कोई अपील करूंगा तो लोग उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। चाहे मैंने बुक बैंक की अपील की या मैंने कोरोना काल में अपील की, लोगों ने बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी को थैंक यू। अपनी लाइफ से इतनी चीजें इसलिए कोट कर पाया क्योंकि वो मेरी लाइफ के एग्जाम्पल है। बहुत सरल और सहज है मुझे उससे रिलेट करके आपसे बात कर पाना। मेरा जो मैंने आशय पहले बताया कि ये रहेगा कि आप इन बातों में से कुछ भी बात आत्मसात कर पाए और आपके जीवन में सकारात्मक चेंज ला पाए। एबिलिटी टू ब्रिंग कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव चेंज इज द रियल पावर। तो मैं अपने आप को पावरफुल समझ पाऊंगा आज की डेट में कि मैं पॉजिटिवली किसी की लाइफ को अफेक्ट कर पा रहा हूँ। सेल्फ बिलीफ में आपने नीरज चोपड़ा का थ्रो देखा होगा इस बार का ओलंपिक में। आपको समझ में आया कितना हार्डवर्क होगा सेल्फ बिलीफ के पीछे। या आप समझिए कि सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए लेकर के इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ा कर दी, तो वो एनआर नारायण मूर्ति में क्या रहा होगा। आप इसको सोचिए, अपने जीवन से रिलेट करिए और कैसे इन बातों को सोच के अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, ये सोचना आपका काम है। आई विल लीव यू एट दैट थॉट। इट वाज फूड ऑफ थॉट फॉर मी, फूड फॉर थॉट। एंड लास्ट एक बात बस बोलना चाहूंगा, चूंकि लगभग सभी युवा हैं जो इस देश का भविष्य होने वाले हैं। हमारे यहाँ अधिकारों पे बहुत विमर्श होता है, मेरे ये राइट है, मेरे वो राइट है, मेरे फलाना राइट है, मेरे ढिमकाना राइट है। कर्तव्यों पे विमर्श करने की परिपाटी हमें शुरू करनी है और वो हमसे आपसे शुरू होगी। उसको शुरू करना है, आज ही शुरू करना है, हम सबको शुरू करना है। इसको करना है। अपने देश को बहुत महान राष्ट्र है, इसको और बढ़िया बनाना है व्यवस्थाओं को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। Thank you so much, sir, for sharing your kind words and this incredible journey. It's always motivating to hear about you and read about you. So, sir, we have some questions for you, if you could answer them. So, Yes, sir, please. the first question would be, there are often times when aspirants get demotivated and feel low during the preparations because there's a lot of competitiveness in the exam and there's burden of expectations. So what could we practice in such situations, sir? देखिए, आपको पता है कि कंपटीशन है बहुत, डिमोटिवेटेड सभी होते हैं। इट्स वेरी नेचुरल। आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, मैं एक्सपर्ट के तौर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको मोटिवेशनल वीडियोस आजकल सब कुछ बहुत अवेलेबल है एक क्लिक पे। हम लोग के टाइम में वैसी सुविधाएं नहीं थी, अभी है, उनका लाभ उठाइए, टेक्नोलॉजी को इनेबलर बनाइए। तो आप मोटिवेशनल टॉक्स देख सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में योगा इत्यादि को शामिल करें। किसी स्पोर्ट्स को, कोई हॉबी अच्छी रखने से डिमोटिवेशन कम रहता है। अपने से बेहतर और सक्सेसफुल लोगों से संगत रखें, उनसे लगातार बात करें, टच में रहें, अपने परिवार वालों से टच में रहें, आप कम डिमोटिवेटेड रहेंगे। एट द सेम टाइम वर्क ऑन स्ट्रेटजी बी ऑल्सो, so that in case something goes wrong, something goes haywire, something goes for a toss, you are not left clueless. तो वो भी, तो जब आप पूरी तरह से, जब आप एक कंपोजिट पैकेज के रूप में, कंसोलिडेटेड वे में जब आप काम करेंगे, तैयारी करेंगे, आप डिमोटिवेटेड होंगे नहीं। Sir, this question is related to the last one. Okay, so how should one deal with the fear of writing the examination? फियर ऑफ राइटिंग द एग्जामिनेशन मुझ में भी था। मेरे एक चाचा जी हुआ करते थे, वो अपनी बड़ी बड़ी अलमारी की किताबें भरी हुई दिखाते थे। मैं एसबीआई पीओ था, मेरे पास कई बार चाय पीने का वक्त नहीं रहता था, तो दिखाते थे, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, मेरा पीटी निकला है, मेंस 2 बार से नहीं हो रहा है। तो उस फियर ऑफ एग्जामिनेशन में मैंने तब तक एग्जाम नहीं लिखा जब तक मेरी कंपलसरी एज शुरू नहीं हो गई। उस समय 34 अटेम्प्ट और 30 इयर्स वो था। 26 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। तो सभी को हो सकता है, लेकिन जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो इसको ओवरकम करिए। ये नहीं कहूंगा कि भावनाओं में बह के बिना तैयारी के पहली बार एग्जाम दे दो, पूरी तैयारी के साथ। ये सब बातें हमेशा रहेंगी। जो इस एग्जाम का टॉपर होता है उसको भी नहीं पता होता कि उसकी कोई रैंक भी आएगी, ठीक है। हम लोग यही प्रे करते थे कि बस किसी तरह से जो है, बस कहीं लटक जाए पीछे ही, कहीं लास्ट ही क्यों नहीं।
और सभी यही प्रे करते हैं। तो ये बेईमानी किस्म का फियर है, इसको जो है बस इससे छुटकारा पाइए। Very well said, sir. So, sir, how did the huge transition from working in a call center to being in one of the most reputed services of the country treat you? And did your previous job help you in building some certain character traits that helped you for the services? सर्टेनली आपकी लाइफ के जो भी एक्सपोजर्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड और बैड, they all augment to your personality, they all work as feeders। और से फॉर एग्जांपल मैं कॉल सेंटर में लेट नाइट शिफ्ट्स करता था, तो मेरी एक लेट नाइट तक बैठने में मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को नींद आने लगे, और वो तो पढ़ाई लिखाई आराम से शांति से रात में जब जॉब से लौटते थे तो रात में बैठ के पढ़ाई करते थे, भले ही 4 घंटा पर डेली करते थे। तो एक उसमें मैंने आपको वो किया, और ट्रांजिशन मुझे कैसा ट्रीट कर रहा है, तो मतलब वो संतोष जो जितना मैं संतुष्ट हूँ आज के समय में अपने उससे, उतना संभवतः मैं उस समय नहीं हो पाता। आज मैं पॉजिटिवली जो है, मैं हो सकता है पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा होता, लेकिन क्या मैं 400-500 स्टूडेंट्स की लाइफ को, या वेबिनार्स के थ्रू हज़ारों लाखों की संख्या में कई बार स्टूडेंट जो है लाभान्वित हो जाते हैं, या आप लोग ही जैसे जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं उस समय आपसे जुड़ पाता इस तरह से? अगर मैं बीपीओ में काम कर रहा होता, हो सकता है मैं इससे भी अच्छा बोल रहा होता अभी 10-15 साल वहाँ काम करने के बाद। पर केवल बोलना सब कुछ नहीं है। Thank you, sir. Sir, what were the major mistakes you made in your initial attempts, and what change did you make in your final attempt? So, any things to avoid and what to do? So, could you share some light on it, please? हाँ, शुरू में जैसे मैं क्या करता था, मैं जैसे दुर्गादास बासु भी पढ़ूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फिर मैं लक्ष्मी अपना ये जो है क्या नाम ही उसका, लक्ष्मीकांत, वो तो उसको कैसे भूल सकते हैं, तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा हूँ, दुर्गादास बासु भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या है, पंडित बनने की, पंडित नॉट 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 एज इन कास्ट, पंडित मीन्स वो जो पांडित्य रखता है, ज्ञान रखता है वो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य को पाना है, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से लक्ष्य को पाना है। उसके बाद आपके पास जीवन पड़ा है, आप एजुकेशन स्टडी लीव पे जाइए, आप और भी डिग्रीज लीजिए, बहुत किताबें पढ़िए, किसी ने नहीं रोका आपको। तो वो वाला एक था कि आपको बिल्कुल ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा था, किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, टॉपिक्स को कवर करना है। कुछ लोग तो चैप्टर्स भी नहीं पढ़ते हैं, केवल टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी का बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच है। ये वाला थोड़ा-सा एक था, और दूसरा मैंने शुरुआती 2 इंटरव्यू जो है हिंदी में दिए, और लास्ट इंटरव्यू मैं हिंदी माध्यम का था, तो मैंने नेचुरली ही इंटरव्यू भी हिंदी में ही दिया। लास्ट इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया, तो एक बहुत बड़ा जंप मुझे मिला था। वो मैं शुरू में ही, मत तो मेरे ईयर्स बच जाते, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम में लिख देता या मैं इंग्लिश में इंटरव्यू, तो मेरे ये साल बच जाते कीमती। तो ऐसी ही कुछ और बातें हैं, वो कभी और आराम से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। Sir, bureaucracy gets changed up in phobias of transfers and politicians. So, what are your views on this, sir? नहीं, व्यूज तो ये हैं, देखिए मैं ऑल इंडिया सर्विस का बंदा हूँ, मैं सदस्य हूँ अखिल भारतीय सेवा का। तो जब मैंने अपना घर छोड़ दिया, वो पहला, जब मैंने छोड़ा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी आप इसमें समझिए वर्ड। तो जब गृह त्यागी बचपन से ही है, तो कोई ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। जब हम पहली बार हमने अखिल भारतीय सेवा ज्वाइन की, और हम छत्तीसगढ़ मेरी थर्ड चॉइस था, तो छत्तीसगढ़ काडर मुझे मिला, तो हमने जैसे ही मिला वैसे ही हमने अपना यूपी छोड़ दिया पूरा, और अब मेरा घर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में आप चाहे नॉर्थ में रखो या साउथ में रखो, ईस्ट में रखो या वेस्ट में रखो, क्या खास फर्क पड़ेगा। तो इसी उससे मैंने इनफैक्ट जीपीएम जैसे नए जिले में, बिल्कुल रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी सेवा दी, दंतेवाड़ा में भी बहुत खुश होकर सेवा दी। आगे सरकार जहाँ कहीं भेजेगी वहां भी खुशी खुशी जाएंगे। Thank you, sir. Sir, over the course of your career, what changes have you seen within the police services? चेंजेस तो ये हैं, जैसे काफी पॉजिटिव चेंजेस ही हैं। जैसे कई जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम्स आ रहे हैं, तो पुलिस के पास मजिस्ट्रियल पावर भी है, तो उससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, और त्वरित निस्तारण जो है समस्या का, उससे कैपेबिलिटी इन्हांस होती है पुलिस की। कुछ चेंजेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम स्वयं भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम लोग जन सेवक हैं, तो
कमजोर और गरीब लोगों की सुनवाई अभी उत्तरोत्तर ज्यादा होती जा रही है, और ये लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण है, और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। दीज आर वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव इंडिकेटर्स। द पीपल whom we are actually working for, we are listening to them more so. पहले भी थे, अभी जैसे शिकायत वगैरह के निस्तारण पे, निराकरण पे बहुत ध्यान रहता है। टाइम बाउंड मैनर में चीजें बड़ी पारदर्शी हैं। आप कई चीजों को ट्रैक कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ने ऐसा इनेबल किया है। चीजें टाइम बाउंड मैनर में रहती हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स ली जाती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा दिनों दिन बेहतर होती जा रही है, आगे और अच्छा हो जाएगा, इसकी मुझे पूरी आशा है। Sir, many aspirants have this doubt regarding when as to start the current affairs and how to start the current affairs, because newspaper is actually really important for this exam. So what would be your tips for the same? Right. I think if you are aware enough and you want to study for this exam, you want to prepare, जब जागो तभी सवेरा है, ये तो हमेशा रहेगा। Sooner the better, शुभ से शीघ्रम। शुभ काम को करने में देरी मत करो, जितना जल्दी करोगे अच्छा है। क्योंकि आप देखिए, ये बात है कि पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स ही ज्यादातर आएगा, लेकिन वो जो उससे पहले का जो आप पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं। तो आपका उत्तर नेचुरली दूसरे ऐसे व्यक्ति से जिसने टाइम बाउंड मैनर में किया है पढ़ाई, उससे बेहतर हो जाएगा। तो आप जो है आजकल तो सब कुछ जो है एक क्लिक पे, मोबाइल पे, जैसे एक टच स्क्रीन मोबाइल पे एक टच किया आपने तो अवेलेबल है टैब पे, आप उसको करें। आप 10th-12th से भी शुरू कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ना, एक अवेयर नागरिक बनना कभी भी बुरा नहीं, चाहे आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। न्यूज़पेपर हमेशा, एक क्वालिटी न्यूज़पेपर 1 या 2 पढ़ने ही चाहिए। Sir, is it a feasible option to have a backup plan, or one should solely focus on clearing the examination? देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टॉक आई वाज टेलिंग यू दैट पीपल हु हैव बैकअप प्लान will not feel demotivated more, will be having more self-belief also. So since the exam is such that it may leave you, it's UPSC, we call it Unpredictable Service Commission. So it should not be a case wherein you are left clueless and optionless at the age of 30 or say 32. Now it has increased. So at the age of 32, you have read so much so that you would not be willing to do a mean job, a menial work. So one should always have one good, decent backup plan B sort of thing. Like I had Group B job, custom and excise inspector. वहाँ 2 दिन का ऑफ मिलता था, अच्छी तैयारी होती थी मेरी, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ, तैयारी उसमें हो गई। अगर यहाँ किसी वजह से नहीं हो पाता, तो वहाँ अच्छा करने की कोशिश करते जितना संभव, बट एम्प्लॉयमेंट रहता हमारे पास में। Sir, we have a question from Dhruv. He's asking, sir, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यूपीएससी में? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम आती है यूपीएससी में? बहुत सारी प्रॉब्लम मैं आपको मुखर होके यहाँ नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ वेरियस ऑब्लिगेशंस। लेकिन जितना कि मुझे ज्ञात हुआ है, कॉपीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चेक होती हैं, इंग्लिश माध्यम के, अंग्रेजी मीडियम के जो प्रोफेसर्स होते हैं, पेपर भी वही सेट करते हैं, पेपर्स को इवेलुएट भी वही करते हैं। सामान्यतः कई चीजें उनको उस स्तर पे समझ में नहीं आ पाएंगी जो एक हिंदी माध्यम का एक प्रोफेसर है जो वो चेक करेगा। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं, थोड़ा बोर्ड फील कर सकते हैं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो एवरेज मार्क्स हो सकते हैं आपके रिटन में, मेरे रहे हैं। और ऑब्वियसली अब एक प्रैक्टिकल बात करें तो अंग्रेजी जो है वो कर्सिव राइटिंग है, और हिंदी जो है वो शिरोरेखा और मात्रात्मक है, आपको पेन बार बार उठाना पड़ता है। तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग एबिलिटी और आपका अभ्यास होना चाहिए बहुत सारा, आपको अभ्यास बहुत करना है। तो तब आप जो है वो, अब चूंकि पेपर बहुत बड़े आते हैं, मतलब जब मैंने दिया था एग्जाम लास्ट टाइम तो करीब 3 घंटे में 30 क्वेश्चन थे जो करने थे, मुझे लिखने थे, थोड़ा बड़ा कम करके लेकिन ठीक ठाक मात्रा में। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स लिखे, मैंने कोई भूमिका नहीं बांधी, सीधे प्रश्न के उत्तर पे आया।
और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा, ये भी रहेगा। फिर इंटरव्यू में आपको कई बार समझ में आएगा कि इंटरव्यू में जो चीफ ऑफ द पैनल हैं, जो चेयरपर्सन है, वो हिंदी बैकग्राउंड, मतलब उनको हिंदी समझ में भी नहीं आती। तो अब जब तक आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, क्योंकि मार्क्स उन्हीं को देना है, बाकी लोग केवल ओपिनियन बताते हैं अपनी। तो ये सब और भी कुछ चीजें हैं, बट ठीक है। तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से तैयारी करना है और बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना है। Sir, the next question is from Sakshi. She is asking, does it make any difference if one writes the mains in English and gives the interview in Hindi? I don't think so. The only the thing that I just discussed with you, if you are not lucky enough and the chairperson is either from South India or from northeast of part of the country, you may not get desired marks. That is the thing. Otherwise, ideally it should not happen, ideally, but life is not ideal, na? So you talked about the importance of having a good speed for writing the exams. So sir, the next question would be, should one aspirant join some test series, and what should be the main way of revising things? I think one must, given the situation, one must, because अगर पैटर्न, मेरे ख्याल से पैटर्न वही है अभी भी, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। नॉट दैट कि यू आर, पहले तो शायद वो वन लाइनर्स भी आते थे कि इसमें से कौन सा सही है, 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहते थे शुरू में। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको बहुत सारा लिखना है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग vis-a-vis अदर्स serious contenders, sorry. So you will be able to do a better SWOT analysis of your capabilities. That is what I think. One should join. Though I did not join any of them. I was in jobs, I didn't have time. Sir, could you please share your experience in being a part of the establishment of the new Gorilla, Penthra Marwai district? Yeah, it was a fantastic challenge. In the same proportion, it was a fantastic opportunity. I thrived onto it. It is the 28th district of the state. We were first posted as OSD police. I was first posted, and my counterpart, Miss Shikha Rajput Tiwari, was posted as OSD administration. So we were tasked with figuring out where all the establishment would be, what all offices need to open. Some offices were required to open on urgent basis. So it was a challenge. We hardly had time of 25 days or so when we were appointed. Normally, OSDs get appointed 3-4 months in advance, but we had very less time at hand, and we finalized all the buildings, all the sections, and everything. Remember, the strength has 150 police personnel only for the entire district, and in that I need to have um, forces for the thanas, for the control room, which operates 24/7, for the police line, for the intelligence gathering branch, so for so many. There are 24, 25 branches of SP office. So I had to I had to literally make them fall in, and I had to interview them, where all you've worked, what all you have learned. ऐसे करके फिर हमने उनको एक एक आदमी को 4-4, 5-5 ब्रांचेस दी, उनको मोटिवेट किया बेहतर करने के लिए, and I at times I had to personally do most of the things कि ब्रांचेस में जा रहे हैं, रजिस्टर उसके खुद ही खोल रहे हैं, बता रहे हैं, बना रहे हैं, दूसरी जगह से मंगा रहे हैं, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट. So it was actually very enriching process. So I really thank the Almighty for this, and obviously the government for having belief So in me. what is the most challenging yet thrilling operation you worked on? Well, the most thrilling operation was on the Vijayadashmi. If you're talking about Naxal operation, I was in Dantewada as additional SP Naxal operation. It was on the Vijayadashmi. It was tweeted by the IPS Association also. So we killed a deputy commander by the name of Deva Kawasi, and he was carrying a reward of rupees 8 lakh. So it was very satisfying operation. I cannot divulge details because these are confidential in nature.
Yes, sir. Understood, sir. Sir, could you please share some final words and words, anything you would want the aspirants to follow? हाँ, देखिए जैसा मैंने बोला वो कर्तव्यों का विमर्श हमें शुरू करना है। डिस्कोर्स ऑन ड्यूटीज, और अधिकार का तो होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए अधिकार क्या है, कर्तव्य भी पता होने चाहिए। एक तो वो है, दूसरा अपने हीरोज को आप देखिए, आपके हीरोज कौन हैं? आपके हीरोज क्या वो हैं जो बॉलीवुड में मोटा पैसा लेकर के एक कुछ भी मतलब आपको परोस देते हैं। मतलब नॉर्मली कई बार मैंने पुलिस की मूवीज देखी हैं जहाँ हर दूसरी तीसरी मूवी पुलिस आती ही आती होती है, तो उसमें रैंक्स तक अभी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं वो, कि कौन रैंक क्या बैजेस पहननी है। तो वो हीरोज हैं, वो लोग हैं, या आपके वो हीरोज हैं जो मतलब आप अपने त्योहार छोड़ के आपको त्योहार मनाने देते हैं, या 35,000 अराउंड जो है पुलिस पर्सनल ने द ऑल्टर ऑफ ड्यूटी दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, वो पुलिसमैन है, या ऑल दोज मेन इन यूनिफॉर्म। कल एक अटैक हुआ मणिपुर में, एक कर्नल जो है रायगढ़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से ही विद फैमिली उन्होंने सैक्रिफाइस किया। फॉर हुम? फॉर हुम? तो ये सोचना है, ये पूछना है। और नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ हेलमेट नहीं पहने होंगे, या हमारे पास गाड़ी के पेपर्स नहीं होंगे, या ऐसी और भी कोई बात होगी, तो हम क्या उसको फ़ोन करवाएँगे, या हम उससे बदतमीज़ी करेंगे रोड पे? कोरोना में मैंने बहुत सारी जगह देखा जहाँ वी वर एज़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आई वाज़ मायसेल्फ ऑन टू द फील्ड, वी वर वर्किंग डे इन एंड आउट एंड पीपल वर मिसबिहेविंग। सो हमारे हीरोज़ कौन हैं और हमें किनको हीरो बनाना है? इन बातों पे हमें विमर्श करना होगा, हमें विचार करना होगा। बहुत गहन मंथन की बातें हैं, और युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है। Yes, sir. It's very disheartening to see such incidents, sir. Sir, the last question for you today would be related to the topic itself. How to initiate that self-belief? How to bring that in oneself, sir? अगर आपने सुना होगा, शुरू में ही मैंने बोला था, एक बच्चा जो है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है जब पैदा होता है, बहुत सेल्फ बिलीफ होता है उसमें। तभी आपने देखा होगा वो ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, या वो कहीं भी आग में भी हाथ डालने की कोशिश करता है। हम धीरे-धीरे उसका सेल्फ बिलीफ कम करते हैं। तो सेल्फ बिलीफ की कमी नहीं है, हमें ये देखना है कि हम परवरिश कैसी दे रहे हैं, संस्कार कैसे दे रहे हैं, कहाँ पे हमें एक्चुअली रोकना चाहिए और वहाँ हम पीछे हो जाते हैं क्या? या कहाँ हमें एक खुली छूट भी देनी चाहिए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा और सीखें। ये बड़ा युक्त संतुलन का निर्णय है, उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। सेल्फ बिलीफ की कमी नहीं है, सेल्फ बिलीफ को नर्चर करना है, एंड आपके टॉपिक में ही है हार्ड वर्क करेंगे वो नर्चर होता रहेगा। It is rightly said, sir. One should learn every second. So, sir, thank you so much for your kind words, your words of wisdom, sir. I'm sure all the budding aspirants here would be feeling overwhelmed with this bundle of experience and motivation today. With this, we have come to the end of this insightful session. I would like to take a moment to present you a vote of thanks, sir. Your journey and work inspires us to the cores of our hearts. Thank you for taking out time from your busy schedule and gracing this event with your presence and knowledge. I would also extend my gratitude to our principal, Dr. Rama ma'am, and our convener, Dr. Mahindra Prajapati sir, for being a support system throughout. I thank the president of the society, Nishtha, Sunil Sengar, who gave me this lovely opportunity to be the moderator for this wonderful session. Last but not the least, I thank the audience who decided to join us today. You can follow us on our social media handles to have regular updates about all our sessions. We'll be back tomorrow with Hansraj Alumna, the last day of this mega event, Avikshit 21. रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता. Thank you once again, sir. Thank you everyone for joining us. Thank you so much. God bless you. Jai Hind. Thank you. All the best. Thank you, sir.